تو کس لیے تیار ہو رہی ہے منحوس؟ میرا بھانجا میری بیٹیوں سے ملنے آ رہا ہے، تو جیسی کو وہ نوکرانی بھی نہ رکھے۔ تائی جان اس کا گلابی روپ دیکھ جل بھن گئی تھی۔ آمنہ نے نم آنکھوں سے تایا جان کو دیکھا، مگر وہاں ہمیشہ کی طرح سرد مہری تھی۔ وہ اپنی کزن کے پرانے کپڑے پہن کر کچن میں کام کرنے لگی۔ نہ جانے کیوں شہریار حسن کی ایک ایک آہٹ پر اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ اپنی گھبراہٹ چھپانے کی خاطر وہ کار پورچ میں آ گئی۔ کاش زندگی میں صرف ایک دن کے لیے مجھے اس کار میں بیٹھنا نصیب ہو جائے۔ وہ حسد بھری نگاہوں سے اس کی گاڑی کو دیکھتے ڈائری لکھ رہی تھی۔ یو لائک مائی کار؟ شہریار حسن کی آواز پر وہ گھبرا کر پیچھے مڑ رہی تھی کہ اسی لمحے لاؤنج کا دروازہ کھول کر آمنہ اندر داخل ہوئی تو گرمی اور دھوپ سے اس کی رنگت گلابی پڑ رہی تھی۔ اے سی کی ٹھنڈی ہوا اس سے آ کر ٹکرائی تو آمنہ نے شکر کا سانس لیا، ورنہ اس شدید گرمی اور دھوپ میں کالج سے 2 بسیں بدل کر گھر آتے آتے اس کی ساری ہمت جواب دے جاتی تھی۔ اس وقت بھی اس کی سفید رنگت امتمائی ہوئی تھی۔ بیگ ٹیبل پر رکھ کے وہ نڈھال انداز میں صوفے پر بیٹھی جب اسے تائی جان اپنے کمرے سے باہر نکلتی دکھائی دی۔ آمنہ گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آ گئی تم؟ آمنہ چلو جلدی کرو، کام پر لگ جاؤ، کچن میں جاؤ، میں نے سارا مینیو ملازمہ کو سمجھا دیا، مگر کھانے میں ملازمہ کا ہاتھ نہیں لگنا چاہیے، سارا کھانا تم نے بنانا ہے، ایک بھی چیز خراب نہیں پکنی چاہیے۔ تائی جان مصروف سے انداز میں کہتے سامنے صوفے پر آ کر بیٹھ گئیں۔ ان کے پیچھے پیچھے ہادیہ اور نادیہ بھی کمرے سے نکلیں۔ آمنہ کے 14 طبق روشن ہوئے۔ پہلے اتنی شدید گرمی میں کالج سے وہ بھوکی پیاسی واپس آئی تھی اور تائی جان نے نہ جانے کس کی دعوت پلان کیے بیٹھی تھی۔ کیا کوئی آ رہا ہے؟ تائی جان اگر صرف گھر کا کھانا بنانا ہے تو میں شام میں بنا دوں گی، پلیز ابھی تو میں بہت تھک گئی ہوں۔ آمنہ نے انگلیاں مسلتے کہہ دیا، مگر جواب تائی جان نے ایسی کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ ہاں میرا بھانجا آ رہا ہے، شہریار حسن، اسی کے لیے سارا اہتمام کر رہی ہوں، اور مجھے زیادہ انکار سننے کی عادت نہیں۔ کالج اپنی مرضی سے جاتی ہو پڑھنے، اور زیادہ بہانے مت بناؤ، منہ ہاتھ دھو لو اور جاؤ جا کر کھانا بناؤ۔ انہوں نے سرد مہری کی انتہا کر دی۔ آمنہ کو رونا آنے لگا۔ وہ شدید تھکی ہوئی تھی، تبھی ہادیہ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا جاپانی کریپ کا خوبصورت سا جوڑا ماں کے سامنے رکھا۔ امی میں یہ پہنوں، اس میں میرا کلر زیادہ ڈل تو نہیں لگے گا نا؟ ہادیہ ایک چپتی ہوئی نگاہ آمنہ کی سرخ و سفید رنگت پر ڈالی۔ آمنہ خوامخواہ اپنی جگہ چور سی بن گئی۔ نہیں پہنو، کوئی ڈارک کلر پہنو اور ابھی پارلر چلی جاؤ، شام تک سکن فریش ہو جائے گی تمہاری، جو بھی مہنگے سے مہنگا ٹریٹمنٹ ملے وہ کروا لینا۔ تائی جان کے لہجے میں شیرینی گھل گئی۔ آمنہ نے دیکھا ہادیہ کے ساتھ ساتھ نادیہ بھی اپنا نیا جوڑا نکالے پریس کر رہی تھی۔ گھر میں شہریار حسن کی آمد کے حوالے سے کچھ انوکھی ہی تیاریاں تھیں۔ تم ابھی تک یہاں کھڑی میرا منہ دیکھ رہی ہو، چلی بھی جاؤ کچن میں۔ تائی جان نے اسے گھر کا وہ مرے قدم اٹھاتے کچن میں چلی آئی، جہاں مینیو کے اوپر لکھی 6 ڈشز دیکھ کر ہی اس کے اوسان خطا ہو گئے تھے، مگر تائی جان کو جواب دینا ناممکن تھا، سو وہ بھوک اور تھکن سے نڈھال ہونے کے باوجود تیزی سے کھانا بنانے لگی۔ بریانی، قورمہ، زردہ، فرائی فش اور پتہ نہیں کیا کیا۔ جب آخری ڈش بنا کر فارغ ہوئی تو گھڑی میں شام کے 5 بج رہے تھے۔ اس کی ٹانگیں شل ہو چکی تھیں۔ ماتھے پر آیا پسینہ پونچھتے وہ پلٹی تو تائی جان کچن میں داخل ہوئے، وہ بھی نہا دھو کر فریش ہو چکی تھی۔ تائی جان اب میں اپنے کمرے میں چلی جاؤں، میں نے نماز بھی نہیں پڑھی، وہ روحان سی ہوتے ہوئے بامشکل بولی۔ تائی جان نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں چلی جانا، پڑھ لینا نمازیں حاجن بی بی، پہلے ایک ہیر پچھلی گلی میں درجن سائمہ کو دے کر آؤ، ابھی اپنی ہادیہ کی شادی ہوگی تو سارے کپڑے اس سے سلواؤں گی، تعلقات اچھے کر لینے چاہیے نا، پھر ریٹ بھی مناسب لگائے گی۔ تائی جان نے چھوٹی سی پلیٹ کے اندر کھیرے ڈال کر اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ آمنہ کا جی چاہا وہ زمین پر بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔
मगर खुद पर जब्त करते इसने प्लेट थाम ली। आखिर कौन सा भांजा आ रहा है? ताईजान का जो घर में इतनी एक्साइटमेंट है। इनकी तो एक ही बहन है, वो दुबई में रहती है। अगर इसका कोई बेटा है भी तो इसके आने पर सब लोग इतने खुश क्यों हैं? प्लेट हाथ में पकड़े वो बेजान अंदाज में किचन से बाहर निकल आए। काम कर करके अब इसकी बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। बाहर 5 बजने के बावजूद हनूज गर्मी और तपिश का वही हाल था। मई का चिलचिलाता महीना पूरी शिद्दत के साथ कराची में उतरा हुआ था। आमना ने दुपट्टा सर पर फैलाया तो उसकी निगाह हादिया पर पड़ी। वो पॉलर से तैयार होकर आई थी। इसकी तैयारियां और चमक दमक देखकर आमना लम्हे भर के लिए साकित रह गई। ओह अच्छा, तो ये बात है, ताईजान अपनी हादिया के लिए शहरयार हसन को घेरना चाह रहे हैं। लेकिन शहरयार हसन को कौन बताएगा कि अपनी हादिया तो कम से कम 6 बॉयफ्रेंड्स भगा चुकी है और 7वें वाले के साथ तो ताईजान में इसे रंगे हाथों पकड़ा था। खैर मुझे क्या, वो खीर की प्लेट थामे कंधे उचकाकर घर से बाहर निकल आई। दर्जन साइमा का घर पिछली गली में था। वो पूरी रोड घूमकर पिछली सड़क पर आई। कई दफा बेल बजाने के बाद साइमा ने दरवाजा खोला। आमना का थकन से बुरा हाल था। वो सख्त झंझला गई थी। पटकने वाले अंदाज में से खीर की प्लेट साइमा के हाथ में पकाई। साइमा ने प्लेट पकड़ी और खाली बर्तन अभी लाती हूँ कहकर अंदर मुड़ गई। जाते जाते वो दरवाजा भी बंद करके आमना ने देखा पूरी स्ट्रीट खाली थी। निढाल से अंदाज में वो घर के बाहर बनी सीढ़ियों पर बैठ गई। सुबह से मैंने अपना यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं किया, कल टेस्ट भी है। पता नहीं कौन है ये मोहतरम शहरयार हसन जिसकी वजह से सुबह से मेरी सख्ती आई हुई है। बेदर्दी से लब कुचल कर इसने दाएं बाएं देखा। एक स्याह रंग की गाड़ी बिल्कुल स्लो रफ्तार में चलते हुए इसी तरफ आ रही थी। आमना के रोंगटे खड़े हुए। अगर इसने मुझे अगवा कर लिया तो वो बेख्तियार अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। गाड़ी अब ऐन इसके सामने आकर रुक गई थी। आमना के कदमों तले से जमीन निकली। इसने पलट कर देखा। दर्जन का दरवाजा भी बंद था। इसने गड़बड़ा कर जमीन पर पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठा लिया। गाड़ी का स्याह शीशा नीचे हुआ और किसी ने बाहर झांका। आमना बेख्तियार एक कदम पीछे हटी। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे ये एड्रेस बता सकती हैं? मैं काफी देर से तलाश कर रहा हूँ, मगर यहाँ सब गलियां और घर एक ही जैसे हैं। अंदर कोई शख्स बैठा हुआ था जिसकी बेजार कुन आवाज आमना से टकराई। ना चाहते हुए भी इसने आवाज की सिमत देखा। ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ शख्स सुनहरी आंखों वाला था। दराज कद और माथे पर बिखरे हुए बाल। इसे सफेद रंग की टी शर्ट और ब्राउन पैंट पहन रखी थी। एक हाथ स्टीयरिंग पर जमाए दूसरे हाथ से वो मोबाइल की स्क्रीन आमना की तरफ किए हुए था। हाँ, इतनी गर्मी में पता नहीं कौन है बेचारा। हवा रो रहा है। वो बेख्तियार एक कदम नीचे आई और तभी इसे और करंट लगाकर ये कोई ट्रैप हुआ था। कितनी बेवकूफ हूं मैं, अभी मुझे पकड़कर गाड़ी के अंदर डाल लेगा। ये तो यहाँ कौन मुझे बचाने आएगा? आमना ने घबरा कर आसपास देखा। गली में और कोई नहीं था। एक्सक्यूज मी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? देखने से तो आप ठीक ठाक ही लगती हैं। आखिरी जुमला इसने हल्के से बड़बड़ा कर अदा किया, मगर आमना ने सुन लिया। गुस्से से इसकी रंगत टिमटिमाई। बेख्तियार इसने हाथ में पकड़ा पत्थर लहराया। खबरदार जो मेरे नजदीक आने की कोशिश की, मैं इसी पत्थर से आपका सर भी फाड़ सकती हूँ। इसकी आवाज गुस्से से बुलंद हो रही थी। गाड़ी में बैठे शख्स ने नासमझी के आलम में इसे देखा, जो कॉलेज यूनिफॉर्म में गुलाबी पड़ते चेहरे के साथ हाथ में पत्थर लिए खड़ी थी। दुपट्टा सर से फिसल कर शानों पर जा पड़ा था। घने ब्राउन बालों की एक झलक ने लम्हे भर के लिए से मुतहिर किया। अचानक वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर नीचे उतरा। मैं आपसे सिर्फ इस जगह का एड्रेस पूछ रहा हूँ। मैं 3 बार इस पूरे मोहल्ले के चक्कर काट चुका हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। वो झंझलाया और बेजार था। आमना का सांस हलक में अटक गया। ऐसे वो पक्का कोई अगवा करने वाला शख्स लग रहा था, मगर इससे पहले कि वो कोई जवाब देती साइमा का दरवाजा खुला और वो धुले हुए बर्तन लेकर बाहर निकली। हाथ में जूस का ग्लास भी था। आमना को हाथ में बड़ा सा पत्थर थामे देखकर वो एकदम चौंकी। साइमा बाजी, देखें, ये शख्स मुझे अगवा करना चाहता है।
शक्ल से वहशी दरिंदा लग रहा है। आमना ने घबरा कर साइमा का हाथ थामा। साइमा ने बेयकीनी से सामने खड़े इस हैंडसम से जवान आदमी को देखा जो आमना की बात सुनकर भुना उठा था। देखिए मैडम, मैं एक शरीफ आदमी हूँ और मैं इनसे सिर्फ इस घर का एड्रेस पूछ रहा हूँ, मगर लगता है ये बताना ही नहीं चाहती। काइंडली आप बता दीजिए। इसने मोबाइल साइमा की तरफ बढ़ाया मगर नजर हनूज आमना पर ही जमी थी। साइमा ने एड्रेस पढ़ा और फिर बेख्तियार बोली, अरे ये तो तुम्हारा ही घर का एड्रेस है। आमना, ये तो तुम्हारे ही कोई रिश्तेदार हैं, तुम इन्हें पहचान भी नहीं पाए। क्या नाम है भाई साहब आपका? आमना का दिमाग भग से उड़ गया। साइमा की बात पर वो शख्स बेचंबे से आमना को देख रहा था। मेरा नाम शहरियार हसन है, मैं कुछ दिन पहले दुबई से आया हूँ। इसके इन दो जुमलों ने आमना पर घड़ों पानी डाल दिया। पत्थर वाला हाथ नीचे हुआ तो बड़ा सा पत्थर धड़ाम से नीचे गिरा। इसने घबरा कर आंखें बंद कर ली। ये है ताईजान का वो भांजा, अब तो मेरी शामत जरूर आएगी। ये शख्स जाते ही ताईजान को मेरी शिकायत लगाएगा और इसके बाद? आमना ने घबरा कर आंखें खोली। वो शख्स साइमा का शुक्रिया अदा कर रहा था। साइमा ने जूस का ग्लास इसकी तरफ बढ़ाया। आप काफी थके हुए हैं, नजर आ रहे हैं, जूस पी लें। आमना आपको अपने साथ ही घर ले जाएगी। साइमा के इस खुश अखलाकी पर आमना का खून खोल कर रह गया, मगर वो कुछ नहीं बोली। शहरियार हसन ने जूस खत्म किया, साइमा का शुक्रिया अदा किया तो वो दरवाजा बंद करके पलट गई। मगर इतनी देर में आमना की टांगें शल हो चुकी थीं। जल भुन में रही हूँ और सुबह से मोहतरम के आने की खुशी में पहले पकवान पका पका कर बेड़ा गर्क हो गया और अब यहाँ धूप में खड़े होकर सारी रंगत जल गई। मेरी और जूस ये मोहतरम पी गए। इसने खा जाने वाले निगाहों से शहरियार हसन को देखा। वैसे आप कौन है, हादिया या नादिया? शहरियार हसन दिलचस्पी से आमना के नाजुक सरापे को देखा। आमना ने सर झटक कर दुपट्टा सर पर जमाया। इन दोनों में से कोई भी नहीं। घर जाते ही आपकी मुलाकात इनसे हो जाएगी। वो सीढ़ियां उतरकर नीचे आई। ठीक है, आप आगे बैठिएगा। शहरियार हसन ने गाड़ी की चाबी निकाली। आमना हैरत से घूमकर पलटी, मैं आपकी गाड़ी में क्यों बैठूंगी? शहरियार हसन की आंखों में ढेरों हैरत उतरी। वो बेख्तियार मुस्कुराया। तो क्या आप इस गुड़ती गर्मी में पैदल चलकर जाएंगी, वो भी 2 गलियां छोड़कर? वो हैरान हो रहा था। आमना क्लस कर रह गई। इस हब्स और गर्मी में कॉलेज से अगर आपके लिए खाने तैयार करके आई हूं मैं, और ऐसी गर्मी में पिछले 25 मिनट से मैं यहाँ खड़ी हूँ। आपकी गाड़ी ने यहाँ आकर कोई एहसान नहीं किया। दिन भर की थकावट अब इसके ऊपर गालिब आ रही थी। शहरियार हसन ने बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट छुपाई। चलाए, मेरे साथ यहाँ सड़क पर खड़े होना मुनासिब नहीं। आपको अकेले नहीं आना चाहिए था। वो सन ग्लासेस लगाता पलट गया। आमना ने बेबसी से इसकी शानदार गाड़ी को देखा और फिर लंबी सड़क को। अब मजीद मुशक्कत की इसके अंदर हिम्मत नहीं थी। दिल पर पत्थर रखकर वो गाड़ी में बैठ गई। वैसे आपने बताया नहीं कि आप इफ़्फ़त खाला की क्या लगती हैं? शहरियार हसन ने चोर निगाहों से इसके सरापे को देखा। आमना बुरी तरह चिढ़ी। आखिर आपको क्या मसला है? मैं क्या लगती हूँ और क्या नहीं? आप अपने काम से काम रखें। थकावट ने इसके असाब शल कर दिए थे। इससे ख्वामखा रोना आने लगा। ये शानदार शख्स और ये शानदार गाड़ी हादिया का नसीब बनने वाली थी, बस मेरे नसीब खराब है। ना माँ बाप का इंतकाल होता, ना मैं ताईजान के दर पर आकर पड़ती, और ना ये मुलाजमा वाली जिंदगी मेरे नसीब में होती। सर झटक कर वो अपने आंसू पीने लगी। गाड़ी ताईजान के घर के सामने रुकी। मेन दरवाजा खुला था। गाड़ी की आवाज सुनते ही ताईजान, हादिया और नादिया अंदर से बाहर गार्डन में निकल आई। जब इन्होंने गाड़ी से आमना को और शहरियार हसन को एक साथ उतरते देखा तो तीनों के माथे पर बल पड़े। ये मैडम क्या करती फिर रही है आपके भांजे के साथ? हादिया ने चिढ़कर इफ़्फ़त बेगम को मुखातिब किया। वो भी खा जाने वाले निगाहों से आमना को देख रही थी, जो शहरियार हसन से पहले ही तेज से इस कदम उठाती इनके पास आकर खड़ी हो गई थी। ताईजान ने फिलहाल तो उससे कुछ न कहा। चेहरे पर खुशामदाना मुस्कुराहट सजाकर वो शहरियार की तरफ मतवज्जो हुई, जिसने शाइस्तगी से इन्हें सलाम किया था। नादिया और हादिया दोनों की तैयारियां देखने वाली थी। अरे शहरियार, अंदर आओ न, तिरसे के बाद दुबई से आयो। छोटे से थे जब तुम्हें आखिरी दफा देखा था। इफ़्फ़त बेगम ने शहरियार के सर पर प्यार दिया।
آئے میں آپ کا اپنا گھر دکھاتی ہوں۔ ہادیہ نے لپک کر میزبانی کے آداب نبھائے۔ آمنہ خاموشی سے اندر کی سمت مڑ گئی۔ اندر لاؤنج میں آ کر اسے پتہ چلا کہ عفت بیگم نے خاندان کے چند دیگر مہمانوں کو بھی مدعو کر رکھا تھا۔ وہ کھٹک گئی۔ تائی جان تو عید بقرہ عید پر بھی کسی کی دعوت نہیں کرتی تھی، تو پھر آج کیا خاص تھا؟ کھانا وہ بنا چکی تھی۔ اس وقت ہادیہ ساری ڈشز اٹھا کر یوں سرو کر رہی تھی جیسے سب کچھ اس نے بنایا ہو۔ آمنہ افسوس سے سر جھٹک کر اوپر اپنے کمرے میں چلے آئی۔ اتنے سارے مہمان موجود ہیں، کسی نہ کسی کام سے نیچے جانا ہی پڑے گا۔ اس نے الماری کھول کر سارے کپڑے کنگالنے کے بعد بھی اس سے کوئی ایک ڈھنگ کا جوڑا بھی پہننے کے لیے نہیں ملا۔ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ پیچ کلر کا ایک خوبصورت مگر پرانا شلوار قمیض نکال کر وہ نہانے چلی گئی۔ نہا کر وہ تھوڑی فریش ہوئی۔ اب اسے گہری نیند آ رہی تھی، وہ بس سونا چاہتی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ لیٹتی، ہادیہ دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ امی تمہیں بلا رہی ہیں، نیچے جلدی آ کر سب کے لیے چائے بناؤ۔ وہ حکم دے کر واپس چلی گئی۔ آمنہ نے بے بسی سے شانوں پر پڑا دوپٹہ سر پر پھیلایا۔ بال ہلکے گیلے تھے، اس لیے اس نے پشت پر کھلے چھوڑ دیے۔ نیچے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھے شہریار حسن نے چونک کر سیڑھیاں اترتی آمنہ کو دیکھا۔ چند لمحے تک وہ اپنی نظر نہیں ہٹا سکا۔ یہ لڑکی کون ہے خالہ جان؟ اس نے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا۔ تائی جان نے بدمزہ ہو کر ایک نظر آمنہ پر ڈالی۔ منحوس جو بھی پہن لے، جانے کیسے اس کے اوپر سج جاتا ہے۔ 2 برس ہو گئے اس کے عید بقرہ عید کے کپڑے بنوانے بھی چھوڑ دیے، پھر بھی پرانے سے پرانا کپڑا پہن کر بھی آسمان سے اتری ہوئی ہوڑ لگتی ہے۔ اور ایک میری بیٹی ہے۔ تائی جان نے ٹھنڈی سانس بھر کر سوچا۔ دونوں پالر سے تیار ہو کر آئی تھی، مہنگے کپڑے پہنے تھے، پھر بھی ان کی رنگت آمنہ کے سامنے پھیکی لگ رہی تھی۔ یہ ہادیہ کے چچا کی بیٹی ہے، ماں باپ خود تو مر گئے، اس بلا کو ہمارے سر پر چھوڑ گئے ہیں۔ سوائے کالج جانے اور واپس آ کے ٹانگیں پساڑ کے سونے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے۔ کھانا تک تو پکانا نہیں آتا۔ تائی جان نے جی بھر کے آمنہ کی برائی کی۔ شہریار حسن نے بامشکل اپنی مسکراہٹ دبائی، کیونکہ آمنہ سیڑھیاں اتر کر کچن میں چلی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد جب وہ باہر نکلی تو اس کے ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھی۔ پہلا گھونٹ لیتے شہریار حسن کو اندازہ ہو گیا تھا کہ عفت بیگم کی باتیں آمنہ کے متعلق سراسر جھوٹ تھیں۔ تائی جان آفس سے واپس آ گئے تھے۔ شہریار حسن شائستگی سے ان کے ساتھ ملا۔ آمنہ نیند سے بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ سب کو دیکھ رہی تھی۔ یا اللہ، جلدی جلدی سب چائے پی لیں تو میں برتن دھو کر سو جاؤں، صبح میرا ٹیسٹ بھی ہے۔ اس نے بے بسی سے دل ہی دل میں دعا مانگی۔ تبھی عفت بیگم نے شہریار حسن کو مخاطب کیا۔ عفت نے تمہیں بتایا تو ہوگا کہ اس نے یہاں تمہیں کیوں بھیجا ہے؟ عفت بیگم کے لہجے میں شیرینی ہی شیرینی تھی۔ ماں کے ذکر پر شہریار حسن نے سر ہلایا۔ ہاں، ان کا کہنا تھا کہ میں شادی کے لائق ہو گیا ہوں، اپنا بزنس دبئی میں سیٹ کر چکا ہوں، تو مجھے شادی کر لینی چاہیے، اس لیے انہوں نے مجھے آپ کے گھر بھیجا تھا۔ وہ صاف گوئی سے بولا تھا۔ ہادیہ اور نادیہ دونوں سیدھی ہو کر بیٹھ گئیں۔ دونوں خواہ شرمانے لگیں۔ بس بیٹا، میں بھی یہی چاہتی ہوں، میری ایک ہی بہن ہے، اور سچ کہوں تو تم مجھے بہت پسند ہو۔ تائی جان نے شہریار حسن کے مہنگے کپڑوں، مہنگی گھڑی اور جوتوں کا معائنہ کیا۔ شہریار حسن مسکرایا۔ تو پھر کیا آپ نے مجھے اپنے داماد کے طور پر قبول کر لیا؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ آمنہ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اسے ساری بات چیت وحشت میں مبتلا کر رہی تھی۔ عفت بیگم خوشی سے نہال ہو گئی۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، میرے سارے رشتہ دار یہاں موجود ہیں، آج سب کے سامنے میں تمہاری منگنی کر دوں گی۔ میری دونوں بیٹیاں دونوں خوبصورت اور سگڑ ہیں، تمہیں ان میں سے جو بھی پسند ہے تم ان میں سے کسی کا بھی نام لے سکتے ہو۔ تائی جان نے بے شرمی سے اپنی دونوں بیٹیاں پلیٹ میں سجا کر اس کے سامنے رکھ دیں۔ رشتہ داروں کے چہرے پر ناگوار تاثر پھیلا۔ آمنہ نے بے بسی سے لب کچلے۔ ایسے کون کرتا ہے تائی جان؟ اپنی بیٹیاں ایک شخص کے سامنے آپ انتخاب کے لیے رکھ رہی ہیں، بھلا ایسی بھی کیا لالچ ہے؟ اس نے سر جھٹکا۔ یہ بات اس نے اپنے دل ہی دل میں کہی تھی۔ شہریار حسن نے ایک نظر ہادیہ اور نادیہ پر ڈالی۔ دونوں کے چہرے پر اعتماد تھا۔ دونوں میں سے کوئی بھی چنی جاتی، فائدہ تو اس گھر کا ہونا تھا۔ شہریار حسن نے گہری سانس لی۔ امی چاہتی ہیں کہ میں کسی پاکستانی لڑکی سے شادی کروں،
اور میں بھی یہ چاہتا ہوں آپ کا گھرانہ مجھے پسند آئے اور میں آپ کا داماد بن کر خوشی محسوس کروں گا، لیکن میں ہادیہ یا نادیہ سے نہیں بلکہ آمنہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پورے لاؤنج میں سناٹا چھا گیا۔ شہریار حسن کی بات پر ان سب کے سروں پر گویا آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ آمنہ لڑکھڑا کر گرتے گرتے بچی، تائی جان کی آنکھیں ابل کر باہر نکلنے لگیں، اور باقی رشتہ داروں میں سے کوئی مسکرا رہا تھا تو کوئی حیرانگی سے شہریار حسن کو دیکھ رہا تھا، جس نے انتہائی بے باکی سے اپنی پسند کا اقرار کر لیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آمنہ کا یہاں کیا ذکر؟ میں نے اپنی ہادیہ یا نادیہ کے لیے تمہیں یہاں بلوایا تھا۔ عفت بیگم دبی دبی سی آواز میں بولی تھی۔ وہ بامشکل اپنا غصہ کنٹرول کر رہی تھی۔ شہریار حسن نے اطمینان سے ٹانگ پر ٹانگ رکھی۔ آمنہ بھی اس گھر کی بیٹی ہے اور ہادیہ اور نادیہ کی نسبت زیادہ سلیقہ مند بھی ہے، زیادہ خوبصورت بھی، اور سچ کہوں تو جو معصومیت اس میں ہے وہ آپ کی بیٹیوں میں نہیں ہے۔ اس لیے میں آمنہ سے شادی کروں گا۔ اس کا انداز دو ٹوک تھا۔ آمنہ نے بھکلا کر تائی جان کو دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ان کی نظر میں ایسی نفرت تھی کہ آمنہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ آمنہ بھی تو آپ کی بیٹی ہے عفت بھابھی، اس کے والدین تو ہے ہی نہیں، اس کا رشتہ بھی تو آپ لوگوں نے طے کرنا ہے۔ اگر شہریار جیسا اچھا رشتہ میسر اور وہ آپ کی آمنہ کو پسند بھی کرتا ہے تو پھر دیر کس بات کی؟ ہم سب کی موجودگی میں رشتہ پکا کر دیجیے۔ یہ بولنے والی آمنہ کی ایک اور چچی تھیں۔ چند اور لوگوں نے بھی ان کی حمایت کی۔ شہریار حسن خاموشی سے سب کا جائزہ لے رہا تھا۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ عفت بیگم شدید دہشت میں آ گئی تھی۔ پھوپھو جان جب اس سارے تماشے سے بیزار سی ہو رہی تھی، چڑھ کر بولی، بھائی تم نے تو ہمیں یہاں بلایا تھا اپنے بھانجے سے اپنی بیٹی کی منگنی کرنے کے لیے۔ ساری تیاری تو تم پہلے ہی کر چکی ہو، اب یہ ڈرامے کرنا بند کرو۔ جلدی انگوٹھی پہناؤ شہریار اس بچی آمنہ کو، تاکہ ہم سب اپنے اپنے گھر کو جائیں۔ نیک کام میں دیر کیسی؟ وہ پہنچا۔ آمنہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ تائی جان نے کھا جانے والی نظروں سے آمنہ کو دیکھا۔ ہادیہ اور نادیہ پیر پٹکتے ہوئے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ دونوں کے تاثرات ایسے تھے جیسے وہ آمنہ کو جیتے جی مار دیں گے۔ پھوپھو جان نے اٹھ کر آمنہ کو صوفے پر بٹھا دیا۔ لاؤ بھائی عفت، کہاں ہے تمہاری انگوٹھی جو تم نے آج منگنی کے لیے نکال کر رکھی تھی؟ پھوپھو جان فل فارم میں تھی۔ انہیں یوں بھی عفت بیگم کی حرکتیں ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ آمنہ پر ہونے والے ظلم و ستم سے وہ سب آگاہ ہی تھے، مگر آج بدلہ لینے کا موقع تو ان سب کو مل گیا تھا۔ شہریار حسن کے لبوں پر بڑی بھرپور مسکراہٹ بکھر گئی۔ شراز سایہ بھی بس تماشائی بنے کھڑے تھے۔ ہاں مگر انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ پھوپھو جان نے شہریار حسن کو آمنہ کے برابر میں بٹھایا تو وہ جی جان سے لرز اٹھی۔ عفت بیگم نے انگوٹھی نہیں نکالی۔ شہریار حسن البتہ اپنی انگوٹھی ساتھ لے کر آیا تھا۔ دیکھتے دیکھتے اس نے آمنہ کا ہاتھ پکڑ کر نفیس سی انگوٹھی پہنا دی۔ آمنہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کے مضبوط ہاتھوں کا لمس اتنا پر اثر تھا کہ وہ لمحے بھر میں سرد پڑ گئی۔ مبارک ہو شزا، آج تم اپنے فرض سے سبق دوش ہو گئی۔ اور عفت کی بہن بھی مایوس نہیں ہوئی۔ پھوپھو مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے شہریار اور آمنہ دونوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ کوئی جا کر پھر سے مٹھائی نکال کر لے آئے۔ سب نے باری باری مٹھائی چکھی، ایک دوسرے کا منہ میٹھا کروایا، اور ساکت بیٹھی عفت بیگم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سب اپنے گھروں کو رخصت ہو گئے۔ تائی جان کا تو حال یہ تھا جیسے وہ کوئی پتھر کی مورت بن گئی ہوں۔ ایسا ہیرے جیسا داماد ان کے ہاتھ سے نکل کر آمنہ کی جھولی میں جا گرا تھا۔ وہ لڑکی جسے وہ گھر کی ملازمہ سے بھی کمتر سمجھتی تھی۔ اپنے کمرے میں چلی جاؤ ورنہ تمہاری تائی جان تمہیں کھا جائیں گے۔ مجھے امی کو کال کر کے مبارکباد دینی ہے۔ آمنہ کو شہریار حسن کی سرگوشی اپنے کان کے پاس سنائی دی تو اسے ہلکا سا رخ موڑ کر دیکھا۔ تائی جان کچھ فاصلے پر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ آمنہ کا دل بند ہونے لگا۔ شہریار حسن ایکسکیوز می کہتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ آمنہ گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ وہ مڑی مگر اس سے پہلے کہ 2 قدم بھی اٹھاتی تائی جان چیل کی طرح اس کے اوپر چھپٹتی تھی۔ یہ گلچھڑے اڑاتی پھر رہی تھی۔ گھر سے باہر اس لیے کار میں بیٹھ کر آئی تھی شہریار حسن کے ساتھ۔ ہاں کیا جادو کیا تو نے اس پر بدذات لڑکی؟
ताईजान ने मुट्ठी में इसके खुले बाल जकड़े। आमना के लबों से एक सिसकी निकली। मैंने कुछ नहीं किया ताईजान, प्लीज मुझे छोड़ दें। मैंने इनसे नहीं कहा था कि वो मुझे पसंद करें। आप चाहें तो ये मंगनी खत्म कर दें प्लीज। वो सिसक उठी थी। वो सारी मारें जो बचपन से लेकर आज तक ताईजान इसे देती आई थी, सभी एक एक करके इसे याद आने लगी थी। ताईजान ने एक जनाटेदार थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारा। आंखों में आंसू लिए ताईजान की तरफ देखा। वो बस खामोश तमाशाई बने अपने मोबाइल की तरफ मसरूफ थे। अपनी बीवी को रोकना इनके बस में नहीं था, ना ही इन्होंने कभी कोशिश की थी। बहुत हवाओं में उड़ रही है। शहरियार हसन जैसा अमीर कभी लड़का चाहिए तुझे? ऐसे तेरे पड़ काटूंगे कि जमीन भी नसीब नहीं होगी तुझे। इन्होंने मुट्ठी में आमना का चेहरा दबोचा। इसकी आंखों से बेख्तियार दो आंसू टपके। जानबूझकर किया इसने ये सब कुछ अम्मी। अपनी सफेद चमड़ी दिखाकर लोगों को अपनी जानिब रागिब करती है, और आज इसने शहरियार को भी घेर लिया। अब ये जाएगी दुबई, ऐश करेगी शहरियार के साथ, और मैं और नादिया यहीं सड़ते रहेंगे। ऊपर रेलिंग के साथ लगी हादिया चिल्लाकर बोली थी। आमना ने बेबसी से पलकें मींच ली। इसने ऐसा कब चाहा था? ना चाहते हुए भी मुसीबत आकर इसके गले में पड़ जाती थी। ताईजान ने रख कर 2-3 धमोके इसकी कमर पर लगाए। वो सिसकती रही। बेख्तियार ही इसने जी भरकर शहरियार हसन को कोसा था, जिसने अनजाने में इसकी जिंदगी जहन्नुम बना दी थी। ताईजान मार मार कर थक चुकी तो इन्होंने खींचकर इसकी उंगली से अंगूठी उतार ली। ये अंगूठी सिर्फ मेरी हादिया के लिए, दफा हो जाए यहाँ से अपनी मनहूस सूरत लेकर। भीख लेने की आदी है तू, भीख ही मिलेगी तुझे। इन्होंने जमीन पर गिरी आमना को ठोकर मारी। वो कराह कर रह गई। हाँपती कांपती ताईजान पलट कर अपने कमरे में चली गई। ताईजान तो पहले जा चुके थे। ऊपर रेलिंग के साथ खड़ी तमाशा देखती हादिया और नादिया सर झटक कर पलट गई। हादिया को ज्यादा अफसोस था, नादिया तो यूं भी एक छोड़कर दूसरा पकड़ने की कायल थी। इस वक्त भी मोबाइल कान से लगाए वो किसी नए नंबर पर राब्ते में मसरूफ थी। आमना ने आंसू भरी पलकें उठाकर देखा। इसकी इज्जत का जनाजा निकालकर माँ बेटियां जा चुकी थीं। अपने बिखरे टूटे वजूद को समेटती वो उठ खड़ी हुई। ताईजान ने इसके बाल बुरी तरह से नोच लिए थे। चेहरे पर जा बजा थप्पड़ों के निशानात थे। खरोंचे अलग दर्द कर रहे थे। वो लड़खड़ाती हुई अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। दरवाजा बंद करते इसे माँ बाप की शिद्दत से याद आई थी, फूट फूट कर रोते हुए। इसने बेख्तियार अपने दाएं हाथ की तीसरी उंगली को देखा। सिर्फ चंद लम्हे शहरियार हसन के नाम की अंगूठी इसने पहनी थी, मगर वो एक अजीब सा एहसास छोड़ गई। वो रात न जाने किस वक्त सोई थी, मगर सुबह बेहंगम से शोर से इसकी आंख खुली। कुछ अजनबी ऊंची ऊंची आवाजें नीचे से सुनाई दे रही थी। बोझल होते सर के साथ वो बामुश्किल उठी। घड़ी में सुबह के 11 बज रहे थे। ओ गॉड, मैं इतनी देर तक सोती रही। मैंने तो कल कॉलेज जाना था, नाश्ता भी नहीं बनाया सबका। वो हवास बागता अंदाज में दुपट्टा संभालती कमरे से बाहर निकली, मगर रेलिंग के पास ही ठिठक गई। नीचे लाउंज का मंजर वाज़ेह था। नीचे कोई आया था, एक खूब शक्ल सी औरत जिसके चेहरे के नक्श इफ़त बेगम से मिलते थे। वो और इनके शौहर दोनों सोफों पर बैठे हुए थे। इनके चेहरे की चमक और खुशी बता रही थी कि वो बड़ी एक्साइटमेंट में यहाँ आए हैं। इनके पास बड़े बड़े टैची केस धरे हुए थे, और शहरियार हसन भी इन्हीं के पास सोफे पर बैठा था। इसकी रंगत भी तमतमा रही थी। ये आवाजें इन्हीं दोनों की थीं। अरे भाई, शहरियार ने तो हमें टिकने ही नहीं दिया। कल रात जैसे ही मंगनी की अंगूठी आमना की उंगली में पहनाई, इसने इसी वक्त हमारी टिकट करवा दी। आधी रात को बुलवाया इस लड़के ने हमें। ताईजान की बहन सिफत बेगम मोहब्बत से शहरियार हसन की तरफ देखते हुए बोली। ताईजान मरवतन मुस्कुराए, अलबत्ता इनके तासुरात सर्दी रहे। ताईजान को सिफत बेगम के शौहर बहुत पसंद आए थे। वो मुसलसल इनके साथ कारोबारी नौयत की गुफ्तगू किए जा रहे थे। रेलिंग के पास खड़ी आमना ने 100 दफा सोचा कि वो नीचे जाए या ना जाए, तभी शहरियार हसन की निगाह इस पर पड़ी। ढेरों रंग इसकी आंखों में उतर आए। इसने पलटकर माँ से कुछ कहा, तभी सिफत बेगम ने भी पलटकर सीढ़ियों की तरफ देखा। अरे भाई, यही आमना है। माशाल्लाह, मेरे बेटे की चॉइस किस कदर खूबसूरत है।
شہریار تم نے تو خود سے بھی زیادہ خوبصورت بیوی پسند کی ہے۔ وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آمنہ پزل سی ہو گئی۔ ہادیہ جو بھی ابھی کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آئی تھی، اس نے کھا جانے والی نگاہ آمنہ پر ڈالی اور پھر دھڑام سے صوفے پر بیٹھ کر موبائل سکرول کرنے لگی۔ آمنہ میری امی ہے، شاید تم ان سے کبھی نہیں ملی کیونکہ ماما اور بابا کبھی پاکستان آئے نہیں۔ شہریار حسن نے اسے مخاطب کیا۔ فاصلہ اتنا زیادہ نہیں تھا، سو اب وہ ریلنگ کے پاس کھڑی نہیں رہ سکتی تھی۔ دوپٹہ سر پر جماتی وہ نیچے چلی آئی۔ صفت بیگم نے اسے ساتھ لپٹا کر خوب سارا پیار کیا۔ ان کے شوہر احتشام انکل نے بھی سر پر پیار دیا۔ صفت بیگم نے آمنہ کو اپنے برابر بٹھا لیا۔ کمال عفت، دیور کی بیٹی کو بھی تم نے ماں بن کر پالا ہے اور ماں بن کر ایسے رخصت کرو گی۔ احتشام زیادہ دن چھٹی نہیں کر سکتے، میں تو کہتی ہوں ہمیں شادی کی تاریخ طے کر لینی چاہیے۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما پا رہی تھی۔ آمنہ نے گھبرا کر تائی جان کو دیکھا۔ وہ بڑے ضبط سے مسکرائے۔ ہاں کیوں نہیں، اب جب تم آئی گئی ہو تو سارے معاملات طے کر لو۔ آمنہ کو حیرت کا جھٹکا لگا، انہوں نے اتنی جلدی خود کو کیسے سنبھال لیا تھا؟ مگر نہیں، اسے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ تائی جان کی نگاہوں سے آگ کی جو لپیٹیں نکل رہی تھیں وہ غیر معمولی تھیں۔ آمنہ کا دل ڈوبنے لگا۔ مجھے اگلے ہفتے واپس جانا ہے، آج پیر ہے، 2 روز بعد کا نکاح رکھ لیتے ہیں، رخصتی کروا کر ہم واپس چلے جائیں گے۔ پھر شہریار جانے اور اس کی دلہن۔ احتشام صاحب نے ہنستے ہوئے کہا۔ تائی جان نے کندھے اچکا دیے۔ ایسے معاملات یوں بھی تائی جان دیکھتی تھی، مگر آمنہ کا دل ڈوبے جا رہا تھا۔ وہ گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ عفت، اپنی بیٹی سے کہو اچھی سی چائے تو بنا کر لائے، میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ صفت بیگم نے فرمائش کی۔ تائی جان نے بعد ناخواستہ ہادیہ کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ وہ رات بھر یقیناً غم مناتی رہی تھی۔ میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ آمنہ کو موقع مل گیا تھا، اس نے فوراً غائب ہونے میں عافیت جانی۔ کچن میں آ کر اس نے سکون کا سانس لیا، مگر یہ سب اسے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اور ویسے ہی ہوا، آہٹ محسوس کر کے وہ پلٹی تو پیچھے تائی جان کھڑی تھی۔ زیادہ خوش مت ہو، یہ مت سمجھنا کہ سب ٹھیک ہو گیا، تو میں ایسی عبرتناک سزا دوں گی کہ تمہارے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ تائی جان بظاہر مسکراتے ہوئے دھیمی آواز میں کہہ رہی تھی، مگر ان کے لہجے سے نکلتی آگ کی لپیٹیں محسوس کرتے آمنہ اپنی جگہ سن رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتری۔ مجھے یہ شادی نہیں کرنی، میں خوامخواہ اپنی زندگی کو جہنم کیوں بناؤں؟ مجھے شہریار اس سے خود بات کرنی چاہیے۔ وہ انگلیاں مسلتی پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ مہمانوں کا رش تھا، اس لیے تائی جان نے بھی پورا دن اس سے کام کے لیے آواز نہیں لگائی۔ وہ اپنے کمرے میں گھبرائی گھبرائی سی ٹہلتی رہی۔ شکر تھا کہ کالج کے بیگ میں چند بسکٹ مل گئے تھے۔ وہ بس رات ہونے کا انتظار کر رہی تھی، مگر آج تو رات بھی قیامت بن کر اتری تھی۔ شام ڈھلتے موٹی موٹی بوندیں برسنے لگی۔ کمرے کی کھڑکی سے لگی آمنہ کا دل ڈوبنے لگا۔ مجھے ہمت کرنی چاہیے، ورنہ پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا۔ بھائی جان تو مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ دل کڑا کرتے اس نے اپنے ذہن میں جملے ترتیب دی اور آہستگی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ بجلی بند تھی، جنریٹر چل رہا تھا جس کی وجہ سے اکا دکا روشنیاں جل رہی تھیں۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتے شہریار کے کمرے کے سامنے آئی۔ اس نے دستک دی تو کچھ دیر بعد دروازہ کھل گیا۔ کافی کا مگ ہاتھ میں تھامے شہریار حسن نے حیرت سے اسے اپنے دروازے پر دیکھا۔ خیریت تو ہے، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مجھے دیکھتے ہی تم تو غائب ہو جاتی ہو۔ شہریار حسن نے طائرانہ نگاہ پیچھے پورے گھر پر ڈالی۔ آمنہ نے بے بسی سے سب کچھ لے لیا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، مجھے اندر آنے دیں پلیز۔ وہ مجھے جھجکتے ہوئے کمرے کے اندر آئی۔ شہریار دلچسپی سے اسے دیکھنے ہلکے سبز رنگ کے سادہ سے شلوار قمیض میں بڑا سا دوپٹہ شانوں پر پھیلائے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، مگر اتنی گھبرائی ہوئی تھی۔ جو بات کرنی ہے بلا جھجک کرو، میں تو حاضر ہوں۔ یار حسن نے دروازہ بند کیا اور ہلکا سا سر کو خم دے کر کہا۔ آمنہ روحان سی ہوئی، آپ پلیز اس شادی سے انکار کر دیں، میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں ہے، تائی جان نے آپ کو ہادیہ کے لیے پسند کیا تھا، وہ میری جان لے لیں گی اگر آپ نے مجھ سے نکاح کیا تو۔ وہ رو پڑنے کے قریب تھی۔ شہریار حسن نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ تم اپنی تائی جان سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟
इससे स्टैंड नहीं ले सकती, और वो क्यों जान लेंगी तुम्हारी? पसंद तो तुम्हें मैंने किया है ना, मेरी मर्जी मैं जिससे भी निकाह करूं। वो कौन होती है मुझे हादिया के लिए पसंद करने वाली? शहरयार हसन ने सुकून से बाजू सीने पर बांधे। आमना ने बेबसी से देखा, आप समझते क्यों नहीं? इस घर में सिर्फ ताईजान की मर्जी चलती है और मेरे पास तो कोई और ठिकाना भी नहीं है। अगर इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? वो बुरी तरह खौफजदा नजर आई। शहरयार हसन ने बगौर ऐसे देखा, तुम्हें किसी ठिकाने की जरूरत नहीं है आमना, निकाह के बाद मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा हमेशा के लिए। इसने आहिस्तगी से आमना का हाथ थामा। वो करंट खाकर पीछे हटी, मगर शहरयार हसन की नजरें देख चुकी थी कि इसके हाथ में अंगूठी नहीं है। तुम्हारी रिंग कहाँ गई? वो बगौर इसे देखकर बोला। आमना की रंगत सर्द पड़ी। वो मैंने उतार दी। वो बेसाख तक घबराई थी। शहरयार हसन ने इसके चेहरे के बदलते रंग देखे। तुम्हारी तायजा ने वो रिंग ले लिया ना? ओ गॉड, किस किस्म का घराना है जुल्म करते हुए, सोचते भी नहीं। जी तो चाह रहे अभी जाकर इनका गिरेबान पकड़ लूं। शहरयार ने अपने बालों को मुट्ठी में जकड़ा। नहीं नहीं नहीं, खुदा के लिए आप ऐसा नहीं करेंगे। हाँ प्लीज निकाह से इनकार कर दें, मैं आपकी मिन्नत कर रही हूँ। मुझ में ऐसा क्या है जो आपको मुझसे ये निकाह करना है? किसी और से कर लें, हादिया से कर लें शादी। वो भी तो इतनी प्यारी है। वो बस हर सूरत इस रिश्ते से इनकार करना चाहती थी। शहरयार हसन की मुस्कुराहट सिमटी। वो चंद लम्हे बगौर आमना को देखता रहा और फिर 2 कदम चलकर इसके सामने आया। जो तुम में आमना, वो बस इसमें नहीं बल्कि किसी और में नहीं। तुम्हें पता नहीं है तुम कितनी पाकीज़ा हो, और मैं ऐसी अनमोल हुस्न को जाने नहीं दे सकता। पहली नजर की मोहब्बत का शिकार हुआ हूं मैं। और शहरयार हसन इतना कमजोर आदमी नहीं कि चंद साजिशी औरतों के डर से अपनी मोहब्बत को छोड़ दे। इसकी आंखों में झांकता हुआ वो एक जज्ब के आलम में कह रहा था। आमना अपनी जगह पर सुन सी रह गई। सारे अल्फाज उसके लबों में दम तोड़ गए। सामने खड़े मजबूत सरापे वाला इस शख्स ने जिस तरह मोहब्बत का इकरार किया था, लम्हे भर में ही आमना को मोतबर कर दिया था। बाहर कोई आहट हुई। एक घुटी घुटी सी चीख आमना के लबों से निकली। डरो मत, लगता है कोई बिल्ली है, मैं देखता हूँ। शहरयार हसन ने मोबाइल की टॉर्च से आमना ने नफी में सर हिलाया। मुझे जाने दें पहले, मुझे बस अपने कमरे में जाना है। वो बुरी तरह घबरा गई थी। शहरयार हसन ने इसे रोका नहीं। दरवाजा खोलते वो अंधाधुंध बाहर भागती चली गई। ये देखे बगैर कि अपने कमरे के दरवाजे की पे खड़ी हादिया ने इसे शहरयार हसन के कमरे से निकलते देख लिया था। अगली सुबह आमना को अपने ड्रेसिंग टेबल पर अंगूठी पड़ी हुई मिल गई। एक बेख्तियार मुस्कुराहट इसके लबों पर फैली। अंगूठी के साथ एक कागज का टुकड़ा भी था जिस पर लिखा था, ये अंगूठी मैंने तुम्हें पहनाई थी, इस पर से तुम्हारा हक है, तुम्हारी इस ताईजान का नहीं। इनके कमरे से चुराई है मैंने, अब इसे पहन लो और उतारना मत। आमना ने गुलाबी पड़ते हुए अंगूठी उठाई और इसे उंगली में पहन लिया। एक लम्हे के लिए इसे ऐसे लगा जैसे वो ताईजान के खौफ से आजाद हो गई हो। अगर ताईजान ने पूछ लिया अंगूठी कहाँ से मिली तो क्या जवाब दूंगी? एक सोच इसके जहन में जागी, मगर अंगूठी उतारने का इसका दिल न किया। इसने आस्तीन हाथ पर आगे तक कर ली जिससे अंगूठी छुप गई। इसका ख्याल था कि ताईजान इसे कामकाज के लिए बाहर बुलवा लेंगी, मगर पूरा दिन सुकून से गुजर गया। ताईजान ने इसे किसी काम के लिए आवाज नहीं दी। ताईजान घर की सजावट की ऑर्डर्स दे रहे थे, इसलिए पूरा दिन केटरिंग का काम होता रहा। मुख्तलिफ रंग बिरंगी लाइटें लगाकर घर को सजा दिया गया। वो खौफजदा थी, पता नहीं ताईजान ये शादी होने देंगी भी या नहीं। धड़कते दिल के साथ इसके ज़हन में बस यही ख्याल था, और वो खुद भी नहीं जानती थी कि इसका रवा दवा दुआ गो था कि शहरयार हसन के साथ इसका रिश्ता ना टूटे। दूसरे दिन वो दिल कड़ा करके कमरे से निकल आई। ताईजान किचन में मसरूफ थी। इफ़त बेगम कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, ना ही शहरयार हसन। घर में गैर मामूली चहल पहल थी। शादी वाला घर मालूम हो रहा था। वो झिझकते हुए किचन में आई। मैं खाना बनाऊंगी, ताईजान घर में बहुत सारे मेहमान हैं, सब कुछ आप कैसे करेंगे? इसने झिझकते हुए पूछा। फ्रिज के पास खड़ी हादिया से देखकर नफरत से पैर पटकते किचन से बाहर चली गई, मगर ताईजान इंतहाई सुकून से इसकी तरफ घूमी। नहीं, तुम क्यों खाना बनाओगी? कल तुम्हारी मेहंदी और परसों तुम्हारा निकाह है। मायूं को जोड़ा तुम्हारी सास ले आई है, वो जोड़ा पहन लो और कमरे में बैठ जाओ। निकाह से पहले लड़कियां काम नहीं करती। वो मुस्कुरा रही थी और इनका अंदाज बिल्कुल नॉर्मल था। आमना गिरते गिरते बची, या अल्लाह, ये
ताई जान को क्या हो गया? क्या सचमुच इन्होंने मेरे और शहरयार के रिश्ते को तस्लीम कर लिया? खुशी की एक लहर से इसके अंदर जागी। इसका जी चाहा कि जाके ताईजन को जोर से गले लगा ले, मगर वो मुड़कर फिर से पतीले में चम्मच हिलाने लगी। अपनी बेतराब खुशी को दबाते वो वापस ताईजान का कहना दुरुस्त था, इसकी मायूं का जोड़ा और बाकी सारे लवाजमात मुलाजमा कमरे में दे गई थी। शाम के वक्त घर वालों की मौजूदगी में सिफत बेगम ने इसे मायूं बिठा दिया। वो सब बेहद खुश थे। इस जर्द जोड़े में आमना को शहरयार हसन की नजरें खुद पर महसूस हो रही थी। मुस्कुराहट ने मुसलसल इसके लबों का अहाता कर लिया था। इसे लग रहा था सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया है, मगर ये इसकी भूल थी। मेहंदी की तकरीब शाम 7 बजे होना तय पाई थी। सब्ज रंग का खूबसूरत खूब सारे घेर वाला फ्रॉक सिफत बेगम ने इसके कमरे में पहुंचा दिया था। ब्यूटिशियन ने 6 बजे पहुंच जाना था। वो सुबह से घबराई हुई थी, लेकिन इसमें भी ज्यादा घबराए हुए अंदाज में हादिया कमरे में दाखिल हुई। यार आमना, कितने मजे से दुल्हन बनकर बैठी हो, तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ? इसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। आमना ने घबरा कर इसे देखा। क्या मतलब, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? वो तो इस पर हैरान रह गई थी। हादिया ने आखिर इसे मुखातिब कैसे किया? वो तो इसे बला की नफरत करती थी। मेरे सैलून में अपॉइंटमेंट है, अभी मुझे वहां के लिए निकलना है, और मेरा ड्रेस दर्जन साइमा के पास पड़ा है, इसने अभी तक नहीं भेजा। अब मैं सैलून जाऊं या इसके पास ड्रेस उठाने जाऊं? अम्मी ने तो सख्ती से मना कर दिया कि किसी मुलाजिम को नहीं भेजेंगी। प्लीज तुम इसके घर चली जाओ। हादिया ने रो पड़ने वाले अंदाज में कहा। आमना की सीटी गुम हुई, मैं कैसे जा सकती हूँ? वो झिझक गई। हादिया ने एक तंजिया निगाह इस पर डाली। हाँ हाँ, पता है तुम मायूं बैठी हो, दुल्हन का सारा प्रोटोकॉल होता है, नकाब करके चली जाओ ना यार। इतनी सी मदद नहीं कर सकती? तुम मेरे सालों का साथ है हमारा, और वैसे भी कल तो तुम रुखसत होकर शहरयार हसन के साथ चली जाओगी। हादिया के लहजे में ढेरों उदासी उतर आई। आमना बेचैन हो गई। मैं ले आती हूँ तुम्हारा ड्रेस, तुम फिक्र मत करो। इसके अंदर की हमदर्द लड़की जाग उठी थी। हादिया के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। इसने खुद ही अलमारी से चादर निकालकर आमना को पकड़ाई। आमना ने चादर ओढ़ी और निकाब करके कमरे से बाहर निकल आई। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। वो लम्हे भर के लिए झिझकी, मगर हादिया ने वादा कर चुकी थी, सो अब इनकार भी मुमकिन नहीं था। मेहमानों के बीच से गुजरती वो घर से बाहर निकल आई। कई लोगों ने इसे देखा। जर्द मायूं के जोड़े की वजह से इसे सबने तकरीबन पहचान लिया था, मगर किसी ने रोका नहीं। बस जल्दी से हादिया का ड्रेस लेकर वापस आ जाऊंगी। आमना ने दिल कड़ा करके गली का मोड़ काटा, मगर एक यकलख्त से किसी ने दबोच लिया। एक चीख आमना के लबों से निकली। मोड़ के करीब एक स्याह रंग की गाड़ी खड़ी थी, जिसके बाहर एक नकाबपोश आदमी खड़ा था। इसने हादिया को दबोच कर इसकी नाक पर रुमाल रख दिया था। वो फड़फड़ाने लगी। खुद को बचाने के लिए जितनी कोशिश वो कर सकती थी इसने की, मगर नकाबपोश आदमी ताकतवर था। इसे दबोच कर नाजुक से आमना को गाड़ी की पिछली सीट पर फेंका। आमना ने उठना चाहा, चिल्लाना चाहा, मगर इसके ज़हन पर किसी मनोन बोझ ला दिया गया। वो पलकें तक न खोल सकी। बेहोशी की दवा इतनी ताकतवर थी कि इसका ज़हन लम्हों में ही गहरी तारीकी में डूबता चला गया। शाम 6 बजे घर में दाखिल होते शहरयार हसन ने बेचैनी से सीढ़ियों की तरफ देखा। आमना के कमरे का दरवाजा बंद था और वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। पता नहीं क्यों उसे अजीब सा लग रहा था। मेहमानों के तासुरात भी अजीब थे। क्या बात है मामा, आप कुछ परेशान लग रही हैं? अभी तक रस्म शुरू करने के भी कोई आसार नहीं नजर आ रहे थे। शहरयार हसन ने सोफे पर बैठी सिफत बेगम से पूछा। इन्होंने अपने आंसू साफ किए। क्या बताऊं तुम्हें शहरयार, आमना आज दोपहर से गायब है। सारे मेहमानों के बीच में चादर लेकर घर से निकली थी और इसके बाद घर वापस आई नहीं। इफत तो कह रही थी कि वो घर से भाग गई है। सिफत बेगम की बात पर शहरयार हसन के सर पर आसमान टूट पड़ा। इसकी रंगत सफेद पड़ी। बकवास कर रही है वो औरत। आमना ऐसी नहीं है, वो क्यों घर से भागेगी? इसने लब भींच कर इस तरफ देखा जहां इफत बेगम तायजन के साथ सर जोड़े कुछ कहती हुई नजर आ रही थी। सारे मेहमान इनके आसपास जमा थे। यकीनन वो सब लोगों में बात मशहूर कर चुकी थी कि आमना घर से भाग गई है। पानी पी लें। निस्वानी आवाज पर शहरयार ने चौंक कर देखा। हादिया पानी का गिलास थामे खड़ी थी। सुर्ख रंग के खूबसूरत लहंगे में मलबूस वो ताम जाम से तैयार खड़ी थी। निगाह शहरयार पर जमी थी और लबों पर मुस्कुराहट थी। अम्मी ने आपको मना भी करना चाहा था, लेकिन आपने इनकी बात सुनी नहीं।
आमना का करेक्टर तो शुरू से ऐसा था, अब भी देखा वो घर से भाग गई। आपको वो सूट नहीं करती। हादिया ने एक अदा से बाल कंधे के पीछे झटके। वो वाज़ेह तौर पर दावते नजारा दे रही थी। शेरियार ने लब भींच कर ऐसे देखा। थैंक्स, मुझे पानी की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ आमना की जरूरत है। इसके सख्त अंदाज पर हादिया की मुस्कुराहट सिमटी। वो मोबाइल जेब से निकालता लाउंज से बाहर निकलता चला गया। हादिया ने बगौर इसकी पुष्ट को देखा। तुम्हारी आमना को तो ऐसी जगह ठिकाने लगवाया अम्मी ने कि वहां से वो कभी वापस नहीं आ सकती। शादी तो तुम्हारी मुझसे होगी। शहरियार हसन के दिल पर सिर्फ मैं ही राज करूंगी। हादिया ने पानी का गिलास लबों से लगा लिया। इसके अंदर तक सरशारी उतर गई थी। इफत बेगम भी चेहरे से मुतमईन नजर आ रही थी। हाँ, मगर बज़ाहिर वो रोने धोने की एक्टिंग करती दिखाई दे रही थी। शहरियार हसन ने गाड़ी में बैठकर बाहर से दरवाजा बंद किया। आखिर में इतना लापरवाह कैसे हो गया? मुझे हर लम्हे इस पर नजर रखनी थी। मैं भूल कैसे गया कि वो दुश्मनों में गिरी हुई है। इसने जेब से मोबाइल निकालकर चंद बटन प्रेस किए और फिर एक स्क्रीन इसके सामने खुल गई। एक सुर्ख रंग का ट्रैक्टर नजर आ रहा था। हादी और इफत बेगम, चाल तो बहुत अच्छी चली है तुम लोगों ने, मगर तुम लोग ये भूल गए कि शहरियार हसन की मोहब्बत है। आमना और मैं अपनी मोहब्बत की हिफाजत करना जानता हूँ। इसने स्क्रीन को जूम किया। सुर्ख रंग का निशान जलता पूछता दिखाई दे रहा था। एक लोकेशन जाहिर हो रही थी। मैंने आमना की उंगली में जो अंगूठी पहनाई थी वो कोई आम अंगूठी नहीं, इसमें ट्रैक्टर फिट था, जो कि किसी ने तुम लोगों को बताया नहीं। मैं दुबई में पुलिस के एक आला ओहदे पर काम करता हूँ, इसलिए मेरे लिए ये सब आम सी बातें हैं। इसने गाड़ी स्टार्ट की। परेशानी से इसके माथे पर बल पड़े हुए थे। पीछे रात की तारीकी फैलनी शुरू हो गई। इसे जल्द से जल्द आमना तक पहुंचना था। वो कई घंटों से गायब थी और इसकी सलामती के हवाले से शहरियार हसन का दिल डूबा जा रहा था। वो पूरी स्पीड से गाड़ी भगाता रहा। तब भी मतलूबा लोकेशन पर पहुंचने में से आधा घंटा लगा। वो कोई कच्ची आबादी से थी जहां आकर ट्रैकर का निशान ठहर गया। आमना को यहीं होना चाहिए, लेकिन आखिर कहाँ? वो एक क्लिनिक नुमा जगह के सामने गाड़ी से उतरा। रात की तारीकी इस कच्ची आबादी में मुकम्मल तौर पर फैल चुकी थी। लाइट बंद थी, सो हर चीज अंधेरे में डूबी हुई थी। शहरियार हसन ने जेब में से एक छोटी सी टॉर्च निकाली। वो अपना इंतजाम हमेशा करके रखता था। ये क्लिनिक उजाड़ सा था। मेन दरवाजा अंदर से लॉक था, सो वो घूमकर पिछले हिस्से में चला आया। यहाँ एक मुंदिम दीवार से इसे अंदर जाने का रास्ता मिल गया। वो कुर्ती से दीवार फैलांग कर अंदर दाखिल होने लगा तो अच्छी मुंतखब की मुजरिमों ने, लगता है पेशावर से हैं। शहरियार हसन के अंदर सर्दी की लहर दौड़ गई। आमना का ख्याल आते इसके रोंगटे खड़े हुए थे। इसने टॉर्च की रोशनी में देखा। क्लिनिक के पिछले हिस्से में टूटे फूटे से 2 कमरे थे। वहां कोई नहीं था। हाँ, मगर जमीन पर जूतों के निशानात थे। वो खामोशी सतह को करता क्लिनिक के दरमियानी हिस्से में आया। यहाँ सीढ़ियां नीचे जाती हुई दिखाई दे रही थी। शहरियार हसन ने टॉर्च की रोशनी मध्यम की। अचानक वो चौंका। ऐसे निचले हिस्से से एक घुटी घुटी सी कराह सुनाई दी। ये आमना की आवाज थी। शहरियार हसन की बर्दाश्त जवाब दे गई। वो तेजी से सीढ़ियां उतरकर नीचे आए और नीचे का मंजर देखकर इसके रोंगटे खड़े हो गए। जर्द जोड़े में मलबूस आमना को रस्सियों से जकड़कर जमीन पर डाला गया। एक पिस्तौल बरदार शख्स इसके कुछ फासले पर कुर्सी डाले बैठा था। फोन इसके हाथ में था और मध्यम आवाज में वो किसी से बात कर रहा था। माल तो बहुत खूबसूरत है, मगर कमारी लड़की की कीमत ज्यादा होती है, इसलिए अभी तक इसे संभाल कर रखा है। आज रात को इसकी डिलीवरी संदल भाई के पास कर दी जाएगी। रकम तैयार रखना और इफत बेगम से भी बाकी की रकम निकलवा लेना। 6 लाख तो इसने पहले दिए थे और 6 लाख काम हो जाने के बाद। वैसे वो औरत होशियार है, अपनी सगी भतीजी का सौदा कर दिया, वो भी लड़कियों का कारोबार करने वाले के हाथों। आदमी कहता मारकर हंसा। शहरियार हसन की बर्दाश्त जवाब दे गई। आमना की हालत देखकर इसके अंदर का वसीला शख्स जाग उठा। इसने सीटी बजाते फोन पर बात करते शख्स को चौंक कर मुड़ा। शहरियार हसन एक भरपूर इसके पेट में रसीद कर दी और वो कड़ा कर औंधे मुंह जमीन पर गिरा। गन इसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी, जिसे फुर्ती से शहरियार हसन ने उठा लिया, मगर इसे गन इस्तेमाल करने की नौबत नहीं आई। इसकी किक ने नहीं इस शख्स को बेहोश कर दिया। चंद जरबे इसके पेट और सर पर लगाने के बाद शहरियार ने
15 पर कॉल की से पता था पुलिस को पहुंचने में 10-15 मिनट लग जाएंगे। इतनी देर में वो होश में आने वाला नहीं था। पलटकर इसने आमना को देखा, वो नीम बेहोशी में थी। इसके मुंह पर टेप चिपकाई गई थी। शहरयार के तासुरात ढीले पड़े, नागवारी की जगह फिक्र ने ले ली। इसने आमना की गाल थपथपाए। लम्स महसूस करते आमना ने आंखें खोली और शहरयार को अपने सामने देखकर वो एकदम फूट फूट कर रोने लगी। कुछ नहीं होता, मैं हूं यहाँ, अब सब कुछ ठीक है, ओके। शहरयार ने नरम आवाज में से मुखातिब किया, मगर वो मुसलसल रोती जा रही थी। हादिया ने मुझे भेजा था और ये लोग पता नहीं कहां से आ गए। शहरयार हसन के टेप उतारते वो टूटे फूटे जुमलों में बोली, मगर शहरयार ने इसे खामोश करवा दिया। कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं सब जानता हूँ। अब उठो, हमारी मेहंदी की रात है, मैं इसे बर्बाद नहीं होने दे दूंगा। इसने आमना का हाथ थाम कर इसे उठाया। वो लड़खड़ा कर चल रही थी, मगर शहरयार हसन अब देर नहीं करना चाहता था। घड़ी में सुइयां 8 के हिंसे से अब आगे बढ़ रही थी और वो बुरी तरह खौफजदा थी। पूरे रास्ते वो कांपती रही। शहरयार ने एक जगह रुक कर इसे पानी पिलाया, इसे साथ लगाकर तसल्ली दी, मगर इसके बावजूद इसका खौफ कम नहीं हुआ था। ताईजान मुझे मार डालेंगी, मुझे घर नहीं जाना और हादिया मिलकर कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी। वो बोल रही थी। शहरयार हसन ने लब भींचे। खुदा की कसम, अगर वो तुम्हारे खूनी रिश्ते ना होते तो मैं आज इनका वो हश्र करता। वो दोनों औरतें याद रखते, लेकिन जो तमाशा इन्होंने तुम्हारा बनाना चाहा वही तमाशा आज मैं इनका बना दूंगा। इसने एक जज्ब से कहा। आमना के आंसू मजीद रवानी से बहने लगे। गाड़ी घर के सामने रुकी तो आमना का हाथ थाम कर इसे अंदर ले आया, जहां सारे मेहमान अब जाने की तैयारियों में थे। शहरयार हसन को आमना का हाथ थाम कर अंदर लाते देखकर सबके सब चौंके। अम्मी, वो देखे हादिया के हाथ से ग्लास छूटकर नीचे गिरा। इसने फक होते हुए चेहरे के साथ माँ को मुखातिब किया। इफ़त बेगम के कदमों तले से भी जमीन निकली। आमना जख्मी थी, लर्ज रही थी और बेहद खौफजदा भी थी। ये तो घर से भाग गई थी ना, क्या तुम इसे ढूंढ कर ले आए? शहरयार, लेकिन घर से भागने वाली लड़की आखिर मिल कैसे गई? किसी रिश्तेदार ने हैरत से पूछा। शहरयार हसन एक नफरत भरी निगाह इफ़त बेगम की तरफ डाली। घर से नहीं भागी थी आमना, बल्कि इस औरत ने नफरत में अंधे होकर इसे अगवा करवाया था। अपनी सगी भतीजी को सिर्फ इसलिए मैंने इसकी बेटी को ठुकरा कर आमना को पसंद किया। इसकी बात पर हर तरफ सन्नाटा छा गया। बकवास है ये, खामोश कराओ अपने बेटे को। सिफत, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये लड़की खुद किरदार की कच्ची है। क्यों शहराज साहब? इन्होंने ताईजान को पुकारा। हमेशा की तरह वो गड़बड़ा कर रह गए। शहरयार ने अफसोस से इनकी तरफ देखा। शर्म आनी चाहिए आपको अंकल, ये आपके मरे हुए भाई की बेटी है। कम अज कम आप तो इसके सर पर शफकत भरा हाथ रख देते। मुजरिमों की कैद से छुड़ा कर लाया हूं मैं इसे, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसकी अंगूठी में मैंने ट्रैकर फिट कर दिया था। शक था मुझे कि ऐसी कोई हरकत करेगी खाला जान। और हादिया, इसकी बात अभी पूरी नहीं हुई कि इफ़त बेगम ने गला फाड़कर चीख उठी। ये सब झूठ है। इस लड़की की करतूतों पर पर्दा डालने के लिए मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। इनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी, क्योंकि सारे रिश्तेदार ताज्जुब भरी नजरों से अब इनकी तरफ देख रहे थे। बस कर दे मामा, बंद करें इस ड्रामे को। ये शख्स मेरा नहीं हो सकता। मना क्या था मैंने आपको कि चाल मत चले, बल्कि जहर देकर मार दे इस घटिया लड़की को। मार ही देते तो अच्छा होता, कम से कम तब तो शहरयार मेरा हो सकता था ना। लेकिन आपको तो अपनी अकल पर भरोसा है। आपने कहा इसे देख लें, वापस आ गई। वो हादिया ने एकदम रोते हुए चिल्ला कर कहा था। इफ़त बेगम ने पलट कर अपनी बेटी को देखा, जैसे सारा भांडा फोड़ दिया था। वो ऐसी थी जज्बाती और सिर्फ अपना ख्याल करने वाली। आज पहली दफा इसकी फितरत ने बेगम को ही डबो दिया। इन्होंने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। रिश्तेदार अफसोस से सर हिलाते रहे। शहराज साहब एकदम गुस्से में आग बगोला हो गए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, हमेशा तुम मुझे आमना के खिलाफ भड़काती रही, लेकिन दरहकीकत जुल्म करने वाली तो तुम खुद थी। ऐसा तो कोई दुश्मनों के साथ भी नहीं करता जैसा तुमने मेरी भतीजी के साथ किया। इनकी आवाज गुलूगीर हो गई। आमना की आंखों से आंसू टपके। शहरयार हसन ने सफाई से इसका मुकदमा लड़ा था। ताईजान अपनी सफाइयां दे रही थी, चिल्ला रही थी। हादिया अपनी ज्वेलरी नोच नोच कर फेंक चुकी थी और अब पैर पटकते वापस अंदर चली गई। इतनी चालें चलने के बावजूद भी शहरयार हसन इसका नहीं हो सका था। सारी दौलत और आसाइशें आमना की झोली में जा गिरी और इसका रोना पीटना तो बनता ही था। मेहमान अफसोस करे थे। शहरयार हसन ने गहरी सांस लेकर आमना की तरफ देखा। वो इसी तरह सफेद चेहरा लिए खड़ी थी। मामा, मैं आज ही निकाह करना चाहता हूँ। एक दिन की भी देर नहीं करूंगा मैं।
شہریار حسن نے سنجیدہ انداز میں ماں کو مخاطب کیا۔ وہ خود اپنی بہن کی چالاکی اور بد فطرتی پر حیران تھی، سو انہوں نے بھی دیر نہیں کی اور یوں مہندی کے بجائے شہریار حسن نے آمنہ کو اپنے ساتھ نکاح کے بندھن میں باندھ لیا تھا۔ عفت بیگم خود اپنے ہاتھوں اپنی جگہ سائی کروا چکی تھیں، سو انہوں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شخص مجھے بھی گرفتار کروا دے۔ انہوں نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے سوچا اور چپکے سے مہمانوں کے بیچ میں سے نکل کر اندر چلی گئی۔ مہندی کے لیے آئے ہوئے مہمانوں کے بیچ میں تایا جان نے آمنہ کو شہریار حسن کے ساتھ رخصت کر دیا اور رات کے پچھلے پہر ایک لگژری 5 اسٹار ہوٹل کے کمرے میں شہریار نے آمنہ کی پریشان صورت دیکھی تو مسکرا دیا۔ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا، پریشان مت ہو، اب تم ہمیشہ میری حفاظت میں رہو گی۔ آہستگی سے اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگاتے وہ مسکرا دیا۔ آمنہ کے سر پر ڈھیروں بوجھ اتر گیا۔ اس نے اپنی دعاؤں میں رخصت کیا تھا، اس کے لیے یہ بہت تھا۔ پرسکون سانس لیتے سے شہریار کے کندھے سے اپنا سر ٹکا دیا۔